हेलो यू ऑल, वेलकम टू टेस्ला इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स। एंड आज के इस वीडियो पार्ट में हम लोग कवर करने वाले हैं एग्जांपल बेस्ड ऑन व्हाट वेक्टर्स। वेक्टर्स का जो हम लोगों ने लास्ट टाइम एडिशन ऑफ वेक्टर्स देखा था, उसके ऊपर हम लोग कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो नाउ ओवर हियर, सो यहाँ पे लास्ट टाइम हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 1 कवर किया था। अब सेकेंड एग्जाम्पल क्या है हम लोग एक बार चेक करते हैं। ऑलराइट, सो टू वेक्टर्स एक्टिंग थ्रू अ पॉइंट आर इन द रेशियो 3:5 है ना। दो वेक्टर्स है, उनके मैग्नीट्यूड का रेशियो हमको 3:5 गिवन है। ठीक है, सो देन नेक्स्ट, इफ द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, ओके, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्ट इज 35, ओके, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स। ओके, so basically two vectors are given, they are in the ratio of magnitude 3:5. Okay, let me draw two vectors. Okay, so this is the first vector, second vector, and angle between them we call theta, right? So angle between them is theta. Theta is nothing but how much? 60 degrees given, right? So let's say this is the vector A, you know, vector A having magnitude equals to, let's say, 3x, and vector B of magnitude equals to must be 5x. Okay, then resultant of these two, we know that the resultant lie towards the vector having higher magnitude, so it should be lie or incline towards vector B. तो यहाँ पे ये incline किधर होगा? towards vector B. तो ये किधर वेक्टर B की तरफ होना चाहिए, जो कि हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, जिसको हम लोग कहते हैं वेक्टर R। और वेक्टर R जो होगा, ये क्या होगा यहाँ पे? वेक्टर A प्लस वेक्टर B का सम, और उसका हम लोग क्या निकालने वाले हैं? पे मैग्नीट्यूड निकालने वाले हैं। सो विल गेट मैग्नीट्यूड, राइट? सो नाउ हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड? वी नो द फॉर्मूला। सो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर magnitude is nothing but what is 35 and equals to, in terms of A and B, so this will be nothing but what? A square, okay, plus B square plus 2AB cos theta, 2AB cos of theta. Alright, so this is 2AB cos theta. Then 35 equals to, we just replace the value, है ना, try to replace values and we'll find our answer. ठीक है, A is 3x, so it will be 9x square, 9x square plus 25x square. Then 2AB will be how much? 15 or to 30, 30x square. Alright, this is what? 30x square into cos 60. Cos 60 is 1 by 2. Now, so this is what? 25, this is 9. The half of 30x square is how much? 15. So 15 and 9, 24. 24x square plus 25x square is how much? 49x square. So 35 equals to how much? Square root of 49x square. After taking square root, this is nothing but what? 35 equals to what? 7x. 7x, and hence x equals to 35 by 7, nothing but 5. So x equals to 5, so we will find value of vector E magnitude is how much? 3x, nothing but what? And this is 5 to 15 unit, and vector B magnitude is how much? 5x, nothing but what? 25 units. Okay, this is the answer. So now in second in the third example, what we have to find? Two forces acting in opposite direction. Obviously they are in opposite direction, means what? Having angle between them is 180 degree. They are anti-parallel. All right, so they are anti-parallel. So if it is vector A, Anna, so if I take the same vector, with the same vector means what? Vector A having equal magnitude but opposite direction. So if I try to draw, then it becomes what? Minus A, it becomes minus A. But अगर इमेज यहाँ पे वेक्टर ए गिवन है और मान लो कोई दूसरा वेक्टर बी है यहाँ पे, ठीक है, जो कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या बनेगा? वेक्टर बी इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। राइट, तो यहाँ पे क्या बोला है? टू फोर्सेस इन अपोजिट डायरेक्शन हैविंग रिजल्टेंट 10। तो हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे वेक्टर्स हैविंग, है ना, वेक्टर्स आर इन व्हाट? एंटी पैरेलल डायरेक्शन. वी कैन राइट इन अ पर्टिकुलर वे. दिस इज व्हाट? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, nothing but what will you get here? We'll get resultant of their magnitude is how much? 10. Okay, so I do write, मैं यहाँ पे लेता हूँ कि वेक्टर E का मैग्नीट्यूड हम लोग A लेंगे और वेक्टर B का हम लोग थोड़ी देर के लिए B लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या बनेगा हमारा? ये बनेगा
a minus b equals to 10. So can I write a equals to 10 plus b? Obviously we can write, ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. बट नाउ हम लोगों ने नेक्स्ट में क्या बोला है, व्हेन एक्टिंग परपेंडिकुलर, अगर वो आपस में ये ए और बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट बनता है 50. तो कैसे होगा, अब आगे हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, मतलब ए और बी का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है. तो कैसे बनेगा चेक करो, अगर ये आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए है और वेक्टर बी है ना, they are perpendicular to each other, so angle between them is what, theta. So theta is given how much, theta is at 90 degree, so we'll get theta equals to 90 degrees given already, right? And when this is happen, so resultant of the vector is how much, 50 न्यूटन है. ठीक है, यहाँ पे इनका रिजल्टेंट कितना है, 50 है. तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, पता नहीं किधर जाएगा, ठीक है, ड्रॉ कर देते हैं. तो कितना बनेगा हमारा यहाँ पे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है ना, उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है 50, राइट? सो व्हाट वी राइट हियर नाउ, वी नो द फॉर्मूला. ओके, सो क्या बनेगा हमारे यहाँ पे, रिजल्टेंट वेक्टर आर है, उसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा हमारा, ना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का एडिशन का मैग्नीट्यूड. सो विल बी व्हाट, अगेन सेम फॉर्मूला, वही चीज़ रिपीट हो रहा है. क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा. ठीक है, बट यहाँ पे जैसे कि थीटा 90 डिग्री, तो कॉस 90 बनेगा 0, तो 2ab कॉस 90 बनेगा 0 पूरा टर्म. तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ए कितना है हमारा यहाँ पे, ए कितना हमारा यहाँ पे, वी डू राइट ए इक्वल्स टू 10 प्लस बी बाई इक्वेशन 1, और बी एज इट इज लिखो, और रिजल्टेंट कितना बोला यहाँ पे 50. तो दिस व्हाट 50 इक्वल्स टू, 50 इक्वल्स टू क्या बन रहा है यहाँ पे, है ना, जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन सब लोग पुट करें हम लोग यहाँ पे सब इन्फॉर्मेशन. दिस इज व्हाट 10 प्लस बी होल स्क्वायर, ए का वैल्यू हमने रिप्लेस किया है और बी एज इट इज़, है ना. सो अब यहाँ पे और आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को इसको थोड़ा सा दोनों साइड में स्क्वायर करना पड़ेगा. तो 50 का स्क्वायर बनेगा 2500, यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा 10 प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो नाउ इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम लोग, किससे, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला से. तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या बनेगा ये, है ना, तो ये बनेगा 2500 इक्वल्स टू, ये बनेगा 100 प्लस हाउ मच 20b प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इट इज़ 2b स्क्वायर. अब यहाँ पे सभी इवन नंबर से सबको 2 से डिवाइड करो, तो ये क्या चेक होगा गाइस, ये क्या बनेगा हमारा चेक करने के बाद, तो ये बनेगा बी स्क्वायर प्लस 10b, है ना, और ये कितना बनेगा हमारा 2500 माइनस 2400, माइनस 2400 का हाफ किया तो कितना आएगा माइनस 1200. तो माइनस 1200 इक्वल टू 0. अब मैं इधर लिखता हूँ, बट यू नो व्हाट, यहाँ पे हम लोग को 12 मतलब 4 इज़ 12, तो यहाँ पे माइनस 1200 के दो फैक्टर्स मुझे पता है कि कितना आना चाहिए, 40 और 30. बट जैसे कि आंसर यहाँ पे 10b प्लस है, तो यहाँ पे कितना आएगा प्लस 40 और माइनस 30. और फाइनल आंसर जब हम लोग निकालेंगे तो b इक्वल्स टू आएगा 30, है ना, है ना, b इक्वल्स टू आएगा 30, या फिर b इक्वल्स टू आएगा हमारा माइनस 40, है ना, माइनस 30 और माइनस 40. तो b अगर 30 आ गया और इसके इक्वेशन 1 के अंदर हम लोगों ने इसको रिप्लेस कर दिया, तो a कितना आएगा हमारा, a विल बी 40 लाइकवाइज. ठीक है, तो ऐसा है ओवरऑल, है ना. तो दिस इज द थिंग. ओके, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट. तो इस वाले एग्जाम्पल में क्या एक्सपेक्टेड हम लोग चेक करते हैं. ठीक है, सो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर्स है आपस में उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है. द नेक्स्ट आर एक्टिंग थ्रू अ पॉइंट, दोनों एक पॉइंट से कनेक्ट किया है, कॉमन पॉइंट से. द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इक्वल है, मतलब उनका जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो भी उनके मैग्नीट्यूड के बराबर है. फाइंड एंगल बिटवीन दिस वेक्टर. ठीक है, अब मतलब इनके बीच का एंगल हमको निकालना है. फिर से वही सवाल बन रहा है शायद, देखो आप लोग यहाँ पे कैसे, मतलब मान लो एक वेक्टर है मेरा कोई, है ना, और दूसरा वेक्टर जो कि कॉमन पॉइंट से हम लोग उसको कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब टेल से कनेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, एज पर गिवन इन्फॉर्मेशन. उसके बाद आगे में क्या बन रहा है चेक करो. तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. मान लो ये वेक्टर p है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड कितना बोला है, हम लोग उसका मैग्नीट्यूड a लेते हैं. ये वेक्टर q है, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना होना चाहिए, यहाँ पे a ही होना चाहिए. और जो रिजल्टेंट वेक्टर है जो उसका भी मैग्नीट्यूड उन दोनों के बराबर है. तो ऑब्वियसली इक्वल वेक्टर का जो क्या होता है हमारा रिजल्टेंट होता है ना, जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो जो रिजल्टेंट है वो एकदम क्या करेगा, एंगल बाइसेक्टर बनेगा. तो ऑब्वियसली ये हमारा रिजल्टेंट जो है वेक्टर p प्लस वेक्टर q का रिजल्टेंट, इसका भी क्या है, जो मैग्नीट्यूड है उनके किसी वेक्टर के बराबर है. तो हमको ये नेट एंगल जो है ये निकालना है, एंगल बिटवीन देम, दैट इज व्हाट थीटा. हमको ये फाइंड आउट करना है. तो कैसे करोगे, सिंपल सा बात है गाइस.
तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या है, फिर से वही फॉर्मूला है, हम लोग फिर से वही चीज़ चेकआउट करने वाले हैं, ठीक है, सिंपल सा बात है। तो क्या है हमारे पास, मान लो पी और क्यू के फॉर्म में यहाँ पे वेक्टर है, तो क्या बनेगा हमारा पी प्लस क्यू, वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू, और उसका मैग्नीट्यूड मतलब नथिंग बट व्हाट, रिजल्टेंट वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू, फिर से वही फॉर्मूला बनेगा, पी और क्यू के फॉर्म में बनेगा इस बार, पी स्क्वायर प्लस, सॉरी हम लोग यहाँ पे हाँ ए लेते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा हम लोग चेक करते हैं, तो यहाँ पे उसका भी रिजल्टेंट वेक्टर आर जो है हमारा, है ना, उसका मैग्नीट्यूड कितना बोल रहा है, यहाँ पे ए बोला हुआ है, तो यहाँ पे ए लिख देते हैं हम लोग, ए इक्वल्स व्हाट इज दैट, फिर से ये कितना बनेगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर, देखो थोड़ा सा हम लोग उसको रिराइट करते हैं, ठीक है, रिराइट करता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या बनेगा हमारा, P का मैग्नीट्यूड A है तो ये बनेगा ए स्क्वायर, क्यू का भी हमारा A ही है तो बनेगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, मतलब क्या बनेगा टू ए स्क्वायर, और ये बनेगा कॉस थीटा, ठीक है। तो कितना बनेगा, ये बनेगा टू ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर कॉस थीटा। तो इसमें से अगर मैं, अब मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैं क्या करना पड़ेगा, ये स्क्वायर रूट में है, ठीक है, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करूँगा, तो यहाँ पे ए स्क्वायर बनेगा और ये क्या बनेगा, यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बनेगा टू ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें से कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ए स्क्वायर और टू ए स्क्वायर इस साइड में जाएगा तो माइनस टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना बनेगा माइनस ए स्क्वायर, और इस साइड में क्या बचा हुआ हमारा टू ए स्क्वायर कॉस थीटा, टू स्क्वायर कॉस थीटा। अब यहाँ पे ए स्क्वायर और यहाँ पे ए स्क्वायर कैंसिल हो गया तो यहाँ पे माइनस वन बचा है, ठीक है। अब इस टू को उधर भेजो, ये बनेगा माइनस वन बाई टू और इधर रहेगा हमारा कॉस थीटा, ओके। अब हमको पता है कि कॉस के कौन सा एंगल के लिए उसका वैल्यू माइनस वन बाई टू होता है, तो देखो हम लोगों ने देखा है कर्व, ठीक है, या फिर हमको ये भी पता है कि कॉस 120 डिग्री इक्वल्स टू होता है माइनस वन बाई टू। ये भी कैसे है, हम लोगों ने ये भी प्रूव किया था, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस में हम लोगों ने देखा था कि देखो कॉस 120 को हम लोग क्या लिखते हैं 90 प्लस 30, 90 प्लस 30, सो कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये बनेगा माइनस साइन 30, और साइन 30 का वैल्यू है हमारा 1/2 और माइनस साइन 30 का आएगा माइनस 1/2, देयरफॉर कॉस 120 आ गया हमारा माइनस 1/2। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना आना चाहिए गाइस, थीटा का वैल्यू आना चाहिए 120 डिग्री। तो ऑब्वियसली हम लोगों ने जो एंगल छोटा एज्यूम किया है ये इतना छोटा नहीं है, यहाँ पे हमको हमारा चाहिए एब्ट्यूस एंगल, तो ये डायग्राम गलत होकर क्या बनेगा, यहाँ पे ऐसे कुछ एब्ट्यूस एंगल बनेगा, ठीक है, वेक्टर पी इधर वेक्टर क्यू और उनके बीच का एंगल 120 और ये 60 से हम लोगों का इधर क्या बनेगा हमारा दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। सो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट वाला एग्जांपल क्या बात करेगा चेक करते हैं हम लोग। सो इन नेक्स्ट एग्जांपल क्या बोला है हम लोग एक बार चेक करते हैं यहाँ पे, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस वन डबल एंड नेक्स्ट क्या हम लोगों का देखो, सो क्या बोला है, जो लिखा था मैंने हटा दिया, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, क्या बोला है यहाँ पे, द रिजल्ट ऑफ टू forces, sorry, one double the other in magnitude, okay, is perpendicular to the smallest of two forces, find the angle between the forces। देखो यहाँ पे दो फोर्सेस यानी दो वेक्टर्स है, ठीक है, तो कैसे है देखो, मान लो ये एक वेक्टर है पहला, ठीक है, और ये दूसरा है, ये मान लो कोई दूसरा वेक्टर है। अब ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस वन डबल द अदर इन मैग्नीट्यूड, मतलब यहाँ पे कंपैरिजन किन का किया है, दो वेक्टर्स के बीच का कंपैरिजन किया है। मान लो ये वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर ए है, इसका अगर मैग्नीट्यूड एक्स है तो जो दूसरा वेक्टर बी होगा उसका मैग्नीट्यूड उसका डबल है, मतलब कितना होना चाहिए 2x, ऐसा यहाँ पे कहा है, ठीक है। अब जो मैग्नीट्यूड है ना, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस वन डबल द अदर, ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर ऑफ टू फोर्सेस, जो है ना, अब इस इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो क्या है ना, जो छोटा वाला है हमारा वेक्टर उसको परपेंडिकुलर है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको हटा के थोड़ा सा ऑब्ट्यूस एंगल ले लेता हूँ, ठीक है, जो बड़ा वाला हमारा वेक्टर है उसको हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल बना लेते हैं, तो थोड़ा सा समझने में हम लोगों को दिक्कत नहीं होगा। तो ये दूसरा वाला वेक्टर जो को रिक्वायर्ड था बड़ा वाला वेक्टर जो कि वेक्टर एक के मैग्नीट्यूड से डबल है, तो ये क्या बनेगा गाइस, तो दिस विल बी व्हाट वेक्टर बी
ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 2x। तब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है देखो क्या बोला है ना, परपेंडिकुलर टू दिस स्मॉलर ऑफ टू फोर्सेस। ठीक है, जो किसको परपेंडिकुलर है, स्मॉलर जो हमारा वेक्टर उसको परपेंडिकुलर है। ठीक है, आउट ऑफ टू गिवन वेक्टर। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, यहाँ पे ये बन गया उसको परपेंडिकुलर, और ये बन गया उसको, ये बन गया उस लोगों को परपेंडिकुलर। यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख देता हूँ मैं, इसका क्या होना चाहिए बताओ। दिस इज व्हाट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का रिजल्टेंट है हमारा। तो क्या बनेगा रिजल्टेंट और उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अभी क्या बोला है, ऐसा कुछ है इस। ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन दी फोर्सेस, मतलब ये दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, उनका बीच का हमको ये एंगल निकालना है। ऑब्वियसली ये वाला एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, इस वाले एंगल को हम लोग थीटा कहते हैं। ये देखो, इस वाले एंगल को हमको फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहली बात, अब देखो जो 90 डिग्री बना है उस वाले एंगल को हम लोग कहेंगे, क्या कहना चाहिए उस एंगल को हम लोगों को, उस एंगल को हम लोग कहेंगे अल्फा। जो 90 डिग्री है उस वाले एंगल को हम लोग कहेंगे अल्फा, और जो बचा हुआ है वो क्या बनेगा बीटा, है ना। हम लोगों ने सब कुछ देखा हुआ है। तो सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दो वेक्टर्स के बीच का जो रिलेशन है वो एक बार हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पे अल्फा के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा टैन अल्फा हमको पता है फॉर्मूला। टैन अल्फा मतलब क्या होना चाहिए ना, जिस वेक्टर के साथ बना रहे उसको छोड़ दो, कौन है हमारे यहाँ पे वेक्टर बी। ठीक है, साइन लगाओ तो बनेगा बी का मैग्नीट्यूड बी है वेक्टर बी का, उसके साथ आएगा साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय। ठीक है, अब कौन सा वेक्टर था साथ में एक्चुअली में ए, उसका मैग्नीट्यूड आएगा ए प्लस फिर से यहाँ पे आएगा बी कॉस थीटा। कितना आएगा हमारा बी कॉस थीटा। ऑलराइट, अब यहाँ पे आगे क्या आएगा, पर टेन अल्फा का वैल्यू कितना है हमारा, यहाँ पे अल्फा है 90 डिग्री, तो टेन अल्फा कितना आएगा हमारा टेन 90, है ना। टेन अल्फा मतलब कितना आएगा टेन 90, और टेन 90 मतलब कितना होता है इन्फिनिटी। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है, तो कितना हमारा बी साइन थीटा बाय व्हाट ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। अब tan 90 इन्फिनिटी क्यों है, क्योंकि साइन 90 अपन कॉस 90, साइन 90 1 और कॉस 90 हमारा कितना है 0। तो देखो यहाँ पे हम लोग को कंपैरिजन करना है किसका, यहाँ पे हमको डिनोमिनेटर का कंपैरिजन करना है। तो a प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू 0 बनेगा, राइट। a प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू बनेगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे a का जो मैग्नीट्यूड है हम लोग रिप्लेस करते हैं, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड हमारा कितना है x है, और b का कितना है 2x है। तो दिस विल बी टर्न आउट टू बी व्हाट x प्लस 2x cos थीटा, x प्लस 2x cos थीटा इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करो आप लोग आगे, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे में देखो ये x उधर जाके बनेगा माइनस एक्स, तो क्या बनेगा 2x cos थीटा इक्वल्स टू माइनस एक्स। ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, ये 2 उधर भेज दो बनेगा cos थीटा इक्वल्स टू बनेगा -1/2। और कॉस के कौन से एंगल के लिए आंसर आपका -1/2 आता है, तो आप लोगों ने अभी देखा है, तो थीटा इक्वल आना चाहिए 120 डिग्री के लिए ये आएगा। लास्ट एग्जांपल में हमने अभी पढ़ा है दिस थिंग। ओके, तो यहाँ पे देखो अभी अभी ने देखा है कि ऊपर वाले एग्जांपल में, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा हमारा 120 डिग्री। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, है ना। कोई दो फोर्सेस यानी दो हमारे पास वेक्टर, एक का मैग्नीट्यूड 3p दूसरा है 2p। ठीक है, इस आर, इन दोनों का रिजल्टेंट है हमारा आर। इफ द फर्स्ट वन इज द डबल, इफ द फर्स्ट फोर्स अगर हम लोगों ने डबल किया, मतलब 3p का हम लोगों ने 6p किया, तो रिजल्टेंट में क्या हो रहा है, रिजल्टेंट भी हमारा ट्वाइस डबल से बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे रिजल्टेंट हमारा 3p, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स 3p एंड 2p कितना हमारा r है। तो पहले का जो पहला हमारा जो वेक्टर है उसका वैल्यू 3p से हम लोग को डबल करना है, मतलब 6p करना है, और इसको वैसे रखना है। तो ये करने के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है उसका वैल्यू भी डबल हो रहा है, मतलब पहले r था अभी बनेगा 2r। तो हम लोगों को इन वेक्टर्स के बीच का फिर से एंगल फाइंड आउट करना है। तो बार बार एक ही सवाल आ रहा है कि उनके बीच का एंगल फाइंड आउट कीजिए, तो वही चीज़ रिपीट होगा, वही फिर से हम लोग प्रोसेस रिपीट करेंगे। ठीक है, कैसे देखो ध्यान दो, मान लो कोई वेक्टर है ना, उसका मैग्नीट्यूड हम लोग मानते हैं यहाँ पे 2p है, पहले वाला सॉरी 3p है और दूसरा वाला 2p है। ठीक है, और उनके बीच का एंगल पता नहीं तो हम लोग उसको थीटा मानते हैं। यही तो हमको फाइंड आउट करना है, ये 3p और 2p। अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर पास हो रहा है ना, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर जो पास हो रहा है, इसका जो मैग्नीट्यूड है उसका वैल्यू कितना हमारा r है, इसका मैग्नीट्यूड जो है इसका वैल्यू r है। ठीक है, अब आगे, अब क्या बोला है हम लोगों को यहाँ पे कि पहले बार में हम लोग इतना ही उसको कंसीडर करना है, तो दिस विल बी व्हाट नाउ, ये क्या होना चाहिए बताओ,
सो रिजल्टेंट वैल्यू इज आर, आर इक्वल टू क्या बनेगा, स्क्वायर रूट में क्या बनेगा हमारा, है ना, 3p का स्क्वायर कितना आएगा 9p स्क्वायर, प्लस 2 का आएगा हमारा 4p स्क्वायर, प्लस 2ab, 2ab मतलब कितना बनेगा 3 to the 6 और 6 का डबल 12, ये बनेगा 12p स्क्वायर कॉस थीटा, 12p स्क्वायर कॉस थीटा, राइट। ये बनेगा हमारा इक्वेशन नंबर 1, है ना। अब नेक्स्ट टाइम में क्या हुआ है, इस 2p को आपको चेंज करना है, सॉरी 3p को चेंज करना है, वो 3p कितना बनेगा उसका डबल कर देंगे तो 6p, बाकी कुछ नहीं करना है। तो ये करने के बाद एक चेंज हो रहा है कि आपका रिजल्टेंट डबल हो रहा है, मतलब ये बनेगा 2r बन रहा है, ठीक है। तो ये 2r बनने के बाद ये क्या बनेगा आगे हम लोगों का 6p और ये 2r। तो अब यहाँ पे कितना बनेगा हमारा, हम लोग नया इक्वेशन बनाते हैं यहाँ पे, दिस विल बी व्हाट नाउ 2r, तो दिस इज व्हाट 2r इक्वल्स टू इन स्क्वायर रूट, है ना। अब नए वाले वैल्यूज के लिए हम लोग चेक करेंगे सिर्फ, बाकी तो सेम है। तो अब यहाँ पे 3 का 6 बन गया, मतलब कितना बन जाए 36p स्क्वायर। देन नेक्स्ट ये कितना बनेगा 4p स्क्वायर, प्लस ये कितना बनेगा हमारा 6 2 12, 12 का डबल 24p स्क्वायर कॉस थीटा, 24p स्क्वायर कॉस थीटा, और ये बनेगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट ही सॉल्व हो चुका है। तो अगर मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करूँगा या फिर 2 को 1 से करो, आपको जो अच्छा लगे वो करो, हम लोग का आंसर आ जाएगा। कैसे, अब हम लोग इसको कर देते हैं, ठीक है। सुनाओ, अब क्या बनेगा, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करो, डिवाइड 2/1 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, डिवाइड 2/1, 2/1, है ना। और स्क्वेयरिंग कर लो एक बार, है ना, स्क्वायर करके डिवाइड करो तो कितना बनेगा, 2 का स्क्वायर बनेगा 4r स्क्वायर, ये बनेगा 4r स्क्वायर इक्वल्स, ये क्या आना चाहिए, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो कितना बनेगा हमारा, ये सब कुछ कितना बनेगा, है ना। तो दिस विल व्हाट नाउ, है ना। तो ये कितना बनेगा हम लोगों का बताओ, सो दिस इज वो 36 और ये बनेगा 40p स्क्वायर, ये बनेगा हमारा 40p स्क्वायर प्लस, है ना, और आगे में 40p स्क्वायर, है ना। तो कितना बना 36 को, ये बना 40 प्लस 24p स्क्वायर, ये बनेगा 40p स्क्वायर प्लस कितना बनेगा 24p स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। और डिवाइड बाई क्वेश्चन 1 को भी हम लोगों ने स्क्वायरिंग किया है तो कितना बनेगा r स्क्वायर, ठीक है। और नीचे में आएगा हम लोगों का इसका भी स्क्वायर हम लोगों ने किया था, कितना है 9 + 4 13p स्क्वायर, ये बनेगा 13p स्क्वायर प्लस 12p स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। अब ऊपर और नीचे में से यहाँ से तो r स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ से p स्क्वायर कॉमन ले लिया हम लोगों ने, तो ये सब करने के बाद p स्क्वायर ऊपर और नीचे में से चला जाएगा, ठीक है, कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब क्या बचेगा यहाँ पे ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं, 40 प्लस कितना बनेगा 24 कॉस थीटा, और कितना बनेगा 13 + 12 कॉस थीटा, तो ये कितना बनेगा 4/1, ये बनेगा 4/1, ये बनेगा 40 प्लस हाउ मच 24 कॉस थीटा, और ये 30 + 12 कॉस थीटा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया ऑलमोस्ट। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ब्रैकेट कर दो पहले, ठीक है, अब ये सॉल्व हो जाएगा। तो कितना बनेगा 4 इंटू दिस टर्म टोटली, तो कितना बनेगा हमारा ये बनेगा हमारा 52 प्लस कितना बनेगा 48 कॉस थीटा, 48 है ये, ओके, इक्वल्स टू कितना बनेगा हमारा एज इट इज़ 40 + 24 कॉस थीटा, ठीक है, 24 कॉस थीटा। तो यहाँ पे 50 और 40, 50 में से 40 गया तो कितना बनेगा 12, और ये कितना बनेगा 24 का डबल बनेगा 48, तो कितना बनेगा ये -24 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल से कितना बनेगा, कॉस थीटा इक्वल से बनेगा -1/2, सो थीटा इक्वल से कितना बना चाहिए 120 डिग्री, थीटा इक्वल से कितना बना चाहिए हमारा 120 डिग्री। फिर से हम लोगों ने जो डायग्राम बनाया था तो फिर से थोड़ा सा गलत हो चुका है, ठीक है, आपको उसके लिए ऑब्टूस एंगल बनाना पड़ेगा, दैट्स इट। हम लोगों को पता नहीं था ना, हम लोग का आंसर निकालने तक हम लोग को इसको कुछ भी पता नहीं था, तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर रहे थे, ऑलराइट। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हम लोग चेक करते हैं, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस हैविंग अ पॉइंट इज 18, ठीक है। अब देखो ये सवाल शायद से फिर से रिपीट हो रहा है ऐसा लग रहा है मुझे, कैसे, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज 15। देखो क्या बोला है, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस, देखो ये आपको समझना पड़ेगा, है ना, सवाल समझना पड़ेगा। सवाल आपको फिर से वही याद दिला रहा है एक चीज़ की, कि दो वेक्टर्स है ना, दो वेक्टर्स है, ठीक है, ये वेक्टर ए है मान लो और ये वेक्टर बी है, ठीक है। ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है मान लो स्मॉल ए, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मान लो स्मॉल बी,
तो क्या बोला है, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू फोर्सेस, ठीक है, उनके मैग्नीट्यूड का सम आपको गिवन है। मतलब आपको क्या गिवन है पता है, आपको ये गिवन है a प्लस बी इक्वल्स टू 18। दिस इज नॉट लाइक दैट कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b और उनका कंबाइंड मैग्नीट्यूड नहीं, ये आपको गिवन है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो इसमें से आप लोग ए भी कर सकते हैं, उसको इक्वेशन मत बोलिए। तो ए को आप लोग लिख सकते हो कि 18 माइनस बी, है ना। अब आप लोग को इक्वेशन 1 बनाओ। ऐसा क्यों? क्योंकि ए का वैल्यू हम लोग बाद में रिप्लेस कर सकते हैं। अब क्या बोला आगे, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, दिस इज वेरी गुड। तो आप क्या बोला यहाँ पे, इनका जो रिजल्टेंट है, मान लो ये यहाँ कहीं से पास हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, और ये इसका मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है पता है आपको, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का कंबाइंड मैग्नीट्यूड। इट इज नॉट लाइक दैट कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ऐसा नहीं है। ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के एडिशन का मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पे ये चेंज है, ध्यान दो, जो हम लोग रिजल्टेंट बोलते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी के एडिशन का मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट लाइक दैट व्हाट कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये ऐसा नहीं है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ये ऐसा नहीं है, ये गलत है, ये ऐसा नहीं है, ठीक है। सो जो मैंने लिखा है यहाँ पे ऊपर में यही सही है एकदम। ओके चलो नेक्स्ट। अब क्या होगा यहाँ पे जो रिजल्टेंट बोला है वो कितना बोला है यहाँ पे 15 बोला है, और यहाँ जो एंगल 90 बना है किसके साथ, जो छोटा वाला है उसके साथ बनाया हुआ है, ठीक है, जो छोटा वाला है उसके साथ उसने 90 डिग्री बनाया हुआ है, ठीक है। तो अब ध्यान देते हैं हम लोग ये मानते हैं यहाँ पे कि भैया ए छोटा है बी से, हम लोग यहाँ पे मानते हैं कि ए छोटा है बी से। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना, हमको काट के उसको 90 डिग्री पे लेके आएंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पूरा पढ़ा नहीं था। तो हम लोग उसको अभी क्या बनाएंगे, छोटा वाला जो है उसके साथ बनाएंगे हम लोग 90 डिग्री। चलो बना दिया उसको 90 डिग्री छोटे के साथ, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब ये 90 डिग्री हो चुका है ना। ये कितना हो चुका है यहाँ पे 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री वाला एंगल कौन सा है हमारा, अल्फा। और ये जो है हमारा पूरा वाला, देखो ये वेक्टर ए और बी का बीच का एंगल वो रहेगा हमारा थीटा। वो थीटा हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। ये थीटा हमको पता नहीं उसके बाद में, ठीक है। ये अल्फा है तो ये वाला कौन सा रहेगा हमारा बीटा, ठीक है। अब क्या बोला है, जो ये रिजल्टेंट है इसका आंसर कितना हमारा, उसका मैग्नीट्यूड 15 है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हमारा 15 लिख दिया मैंने यहाँ पे ना। तो अब क्या बोला है ना, तो विद फोर्सेस स्मॉल मैग्नीट्यूड, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, मतलब आपको ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो ये थोड़ा सा सिमिलर हो चुका है हमारा, हम 2-4 एग्जांपल पहले वाला एग्जांपल लिया था उसके वैसे हो गए। तो कैसे देखो यहाँ पे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए है, और ए और रिजल्टेंट के बीच में एंगल कितना है हमारा, 90 डिग्री। सो अल्फा इज व्हाट 90। सो आई डू राइट ओवर हियर tan अल्फा इक्वल्स टू व्हाट 90 डिग्री इक्वल्स टू, हमको पता है क्या होना चाहिए बताओ, यहाँ पे होना चाहिए हमारा व्हाट बी साइन थीटा। बी साइन थीटा अपॉन क्या होना चाहिए यहाँ पे ए कॉस थीटा, ए प्लस कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा, सॉरी ए प्लस बी कॉस थीटा। सो अब हम लोग यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं, बी को वैसे रहने दो, जहाँ पे ए है वहाँ पे 18 माइनस बी पुट करो, ठीक है, हो गया सॉल्व। तो tan 90 कितना होता है, tan 90 अल्फा, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू 90 डिग्री नहीं है, इक्वल टू क्या आएगा हमारा, ये इक्वल टू आएगा हमारा tan 90, इक्वल टू tan 90। और ये क्या होता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब क्या होना चाहिए हमारा, इन्फिनिटी मतलब 1/0, 1/0 इक्वल टू क्या आएगा बी एज इट इज रखो, इस व्हाट बी साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय, ये क्या बनेगा हमारा, ए को हम लोग क्या पुट करेंगे इक्वेशन 1 से 18 माइनस बी, 18 माइनस बी, और ये क्या बनेगा हमारा प्लस बी कॉस थीटा। ऑलराइट, दिस इज द थिंग। अब देखो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है आपका, ये कंपेयर होगा आपके इस वाले डिनोमिनेटर वो जो कि 0 है। तो अब आगे कैसे सॉल्व होगा चेक करो यहाँ पे। सो 18 माइनस बी प्लस बी कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। तो देखो गाइस यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये 18 माइनस बी है ना, 18 माइनस बी प्लस बी कॉस थीटा है ना। बट हमको और एक चीज़ हमको पता है, क्या पता है हमको, रिजल्टेंट के बारे में हम लोगों को पता है। तो हम लोग वो भी यहाँ पे एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो मैं इसको थोड़ा सा आगे लिख देता हूँ, तो क्या बनेगा हमारा ये बी कॉस थीटा, ये क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा, है ना, ये बनेगा बी माइनस 18, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 बोलेंगे। अब हम लोग यहाँ पे एक ही यूज़ कर सकते हैं, कौन सा वाला, रिजल्टेंट का फॉर्मूला, वो कितना है हमारे यहाँ पे 15 है ना, कितना है हमारे यहाँ पे रिजल्टेंट इज गिवन आई गेस 15 ना, ओके 15, और ये कितना ए और बी, ठीक है, कितना हमारा ए और बी, दिस इज व्हाट ए और बी है ना। तो 15 इक्वल्स टू क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, प्लस क्या बनेगा हमारा ना, ये बनेगा 2ab cos थीटा, और यहाँ पे स्क्वायर रूट मैंने जैसे हटा लिया है तो कितना बनेगा 15 का
स्क्वायर बन गया। तो दिस विल बी व्हाट नाउ 225। तो कितना बनेगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब बी कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे बी माइनस क्या हमारा 18 आप लोग रिप्लेस कर सकते हो। तो कितना बनेगा ये 2a, ये कितना बनेगा हमारा बी कॉस थीटा मतलब कितना बनेगा हमारा b माइनस 18। अब हम लोग यहाँ पे a का वैल्यू भी रिप्लेस कर सकते हैं इक्वेशन 1 से। a का वैल्यू क्या है हमारे पास बताओ 18 माइनस बी, यहाँ पे 18 माइनस बी है a का वैल्यू। सो दिस विल बी नाउ 225, यहाँ पे 18 माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू फिर से 18 माइनस बी इंटू बी माइनस 18, दिस इज थिंग। ओके, अब आगे करते हैं हम लोग इसको। अब ऑलमोस्ट हो चुका है ये 225, 18 माइनस बी होल स्क्वायर 18 माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये कितना देखो यहाँ पे माइनस साइन कॉमन लेंगे तो कितना बनेगा बी माइनस 18 का होल स्क्वायर। यहाँ पे -2 लिख देता हूँ, यहाँ पे अंदर में साइन चेंज हो जाएगा तो कितना बनेगा बी माइनस 18 और बी माइनस 18 का होल स्क्वायर, ये बनेगा बी माइनस 18 का होल स्क्वायर। ऑलराइट, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सो अब ये सब करने के बाद अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे किसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे बी का वैल्यू हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोगों का बी का अगर मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक लिखूंगा पूरा सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे बी का वैल्यू आना चाहिए हमारा यहाँ पे ऑलमोस्ट 13 यूनिट। यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगा तो बी का वैल्यू आना चाहिए ऑलमोस्ट 13 यूनिट। और बी का वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा तो ए का वैल्यू आएगा मेरा 5। ठीक है, दिस इज थिंग। अब आप लोग इसका वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करके कौन से वाले में यहाँ में आप लोग कॉस वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं बी का वैल्यू रिप्लेस करके। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने एग्जांपल के अंदर एग्जांपल बना दिया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या चेक करते हैं हम लोग, क्या बोला यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए। इफ n vectors of equal magnitude are acting through a point and angle between the adjacent vectors is 2 pi by n, find the result at। मतलब आप लोग समझ लो यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश हो रही है कि हमारे पास n नंबर ऑफ वेक्टर्स, n कितना भी हो सकता है 1 2 3 4 0 समथिंग कुछ भी, और जो भी वेक्टर्स ले रहे हो आपस में उनके बीच का एंगल कितना है 2 पाई बाय n। तो यहाँ पे जितना वेक्टर सेलेक्ट कर रहे हैं वो भी यहाँ पे डिवाइड में है। मतलब कैसे हम लोग इनिशियली क्या करते हैं, देखो केस बाय केस हम लोग स्टडी करते हैं इसको। इसका बोलने का मतलब क्या है, आप लोग यहाँ पे आंसर्स ओरली मिल जाएगा बाद में। अगर मैं नंबर ऑफ वेक्टर्स 2 लेता हूँ, मिनिमम तो दो लेना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, तो कैसे दो वेक्टर्स लिया इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब मान लो मैंने वेक्टर ए लिया है उसका मैग्नीट्यूड मान लो हम लोगों ने एक्स लिया है, और बाद में आप लोग दूसरा जो एज्यूम कर रहे हो वेक्टर भी उसका भी मैग्नीट्यूड आपको एक्स लेना पड़ेगा। ठीक है, अब बट आप लोग इक्वल इन मैग्नीट्यूड लेना है ना, तो वो तो ले लिया हम लोगों ने, वो उनके बीच का एंगल आपको डिसाइड करना है कौन से फॉर्मूला से 2 पाई बाय n। तो n हम लोगों ने कितना लिया है यहाँ पे 2 लिया है, तो n अगर 2 है तो उनके बीच का एंगल कितना आएगा, देखो थीटा क्या बोल रहा है हम लोग का यहाँ पे 2 पाई बाय n है। 2 पाई बाय n मतलब यहाँ पे n का वैल्यू 2 रिप्लेस कर दिया तो कितना बनेगा पाई, पाई मतलब कितना डिग्री बनेगा 180 डिग्री। तो क्या ये आपस में एंटी पैरेलल बनेंगे, हाँ बिल्कुल बनेंगे यार। तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स मतलब ए का मैग्नीट्यूड हमारा ये ए है। ठीक है, वेक्टर ए है हमारा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ये वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड x है और b क्या है हमारा, उसका मैग्नीट्यूड x है। बट आपको ध्यान देना पड़ेगा उनके बीच का एंगल कितना है 180, तो ऑब्वियसली उनका लेंथ इक्वल है बट यहाँ पे डायरेक्शन आपको देते हैं। तो देखो यहाँ पे ये पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे उनके बीच का ये पॉइंट है और ये कितना हमारा वेक्टर b जिसका मैग्नीट्यूड भी कितना है हमारा x है, और उनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए हमारा थीटा इक्वल टू 180। क्या मैं इस वेक्टर b को ऐसे लिख सकता हूँ, वेक्टर b इज नथिंग बट माइनस वेक्टर ए, हाँ बिल्कुल है। और ये हमारा क्या था वेक्टर ए था, ये हमारा कौन सा वेक्टर ए। तो देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी का एडिशन कितना आना चाहिए, तो वेक्टर ए एज इट इज बट वेक्टर बी नथिंग बट व्हाट माइनस वेक्टर ए, क्योंकि ये क्या है हमारा एंटी पैरेलल वेक्टर से, तो क्या बनेगा माइनस वेक्टर ए। तो ये दोनों का एडिशन कितना आएगा 0, कितना गया यहाँ पे एडिशन 0। तो हम लोगों ने देखा है कि वेक्टर साथ अगर आप एंटी पैरेलल होते हैं तो वहाँ पे उनका सब्सट्रैक्शन होगा, जैसे देखते हैं हम लोगों ने केस बाय केस स्टडी किया। अब मान लो मैंने यहाँ पे n का वैल्यू थोड़ा चेंज किया, मान लो मैंने n इक्वल 3 ले लिया। ठीक है, आप लोग कोई भी केस कंसिडर कर सकते हो, n इक्वल 3 लिया तो छोटा नंबर इसलिए ले रहा है कि हम लोग उसको जल्दी से वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट उसका 0 आएगा, कैसे ध्यान दो, और थीटा कितना आएगा हम लोग वो भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे थीटा जैसे 180 है तो थीटा कितना आएगा यहाँ पे ये भी हम लोग चेक कर सकते हैं। देखो तो n इक्वल टू अगर हम लोगों ने 3 लिया तो कितना बनेगा, देखो n का वैल्यू अगर 3 लिया हम लोगों ने, थीटा कितना बना चाहिए, थीटा नथिंग बट व्हाट 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3। तो 2 पाई मतलब कितना होना चाहिए हमारा बताओ
2π/3, तो ऑलमोस्ट हम लोग कितना आना चाहिए यहाँ पे, अगर मैंने 3 लिया तो ये आना चाहिए 120 डिग्री है ना, 2π/3 मतलब 120 डिग्री, ठीक है। अब वन एक दूसरे के साथ उनका यहाँ पे कितना आना चाहिए वेक्टर का एंगल, उनके बीच का एंगल आना चाहिए 2π/3। तो चलो हम लोग यहाँ पे 2π/3 लेते हैं 2 सेकेंड से। ठीक है, सो मान लो मैंने यहाँ पे पहला वेक्टर बना लिया है, ये वेक्टर है ए, आपस में ये इक्विवेलेंट मैग्नीट्यूड है, इसका वैल्यू मान लो हम लोग ए है, ठीक है। दूसरा वाला जो है उसके और इसके बीच में एंगल कितना आना चाहिए हमारा 120 आना चाहिए, तो आपको काफ़ी बड़ा लेना पड़ेगा, मतलब एंगल 120। और तीसरा वाला देखो गाइस, तीसरा वाला भी आपको क्या आना चाहिए 120। तो इनके बीच का जो एंगल है ना ये 120 है, इनका बीच का एंगल कितना आपका 120 डिग्री है। सो ये सब 120 होना चाहिए, देखो ये सब 120 डिग्री, 120, ये भी 120 और ये भी 120 डिग्री। अगर ये ए है तो इसका मैग्नीट्यूड ए है और इसका मैग्नीट्यूड ए है, तो ध्यान दो। तो इन दोनों का अगर हम लोग रिजल्टेंट फाइंड करेंगे इस वेक्टर का, इस वेक्टर का, तो ये कहाँ से पास करेगा, तो ये इधर किधर से पास करेगा, है ना, तो इधर किधर से पास करेगा, तो एकदम सेंटर से पास करेगा, मतलब कैसे, क्योंकि ये आपस में इक्वल है, तो हमको पता है कि अगर वेक्टर्स इक्वल है तो वो क्या करता है यहाँ पे उसका एंगल बाइसेक्टर बनता है, तो ये कितना बनाएगा यहाँ पे 60 डिग्री बनाएगा और ये भी कितना बनाएगा 60 डिग्री बनाएगा। और यहाँ पे ये रिजल्टेंट वेक्टर है, इसका वैल्यू भी कितना आना चाहिए वो चेक करो, हम लोग चेक करते हैं, देखो कितना आना चाहिए रिजल्टेंट वेक्टर, कितना आना चाहिए उसका मैग्नीट्यूड चेक करते हैं हम लोग। तो कैसे आएगा, थीटा कितना बनाया टोटल 120 था, तो यहाँ पे ए का स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर, दूसरे का भी मैग्नीट्यूड ए है तो ए स्क्वायर, प्लस 2ab मतलब 2ab, ए इंटू बी मतलब ए इंटू ए स्क्वायर, और कॉस ऑफ 120, कॉस 120 कितना आता है हमारा -1/2 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, ये 2 और ये 2 कैंसिल, और ये कितना बनेगा हमारा -a², तो प्लस ए स्क्वायर और -a² एक कैंसिल और एक ए स्क्वायर बच गया है, तो रिजल्टेंट के अंदर उसका स्क्वायर रूट के अंदर कितना आ गया ये a², तो ये आएगा हमारा ए सिंपली, ठीक है। तो रिजल्टेंट भी ए आ चुका है, देखो गाइस ये ए है, ये अगर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आपका ए है तो उसका एंटी पैरेलल देखो कौन सा वाला, देखो ये और ये इसके बीच में देखो ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, ये ए है तो ये कितना होना चाहिए उसका -a, तो इन दोनों का एडिशन कितना होगा यहाँ पे देखो, इन दोनों का एडिशन कितना बनेगा 0। आर यू गेटिंग अ पॉइंट। तो ये रिजल्टेंट जो आया है और थर्ड वेक्टर जो बचा था, तो ये आपस में क्या है एक दूसरे के एंटी पैरेलल, देयरफॉर उनका एडिशन क्या बनेगा यहाँ पे 0 बनेगा, देयरफॉर यहाँ पे n=3 के लिए भी क्या बनेगा 0 बनेगा, दिस इज द केस, ओके। अगर आप लोग n=4 लेते हैं, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ और आगे बढ़ते हैं, आप लोग n=4 के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हो, तो n के कोई भी वैल्यू के लिए ये वैलिड है, तो n=4 के लिए क्या बनेगा चेक करो, n=4 के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है यहाँ पे 2π/n, तो 2π/n मतलब कितना बनेगा आई गेस 90 डिग्री होना चाहिए, थीटा को क्या बनेगा 2π/4, तो मतलब π/2 मतलब कितना बनेगा 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ वेक्टर्स 4 है और इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, तो आप लोग खुद चेक करो यार, तो क्या बनेगा एक कार्टेशियन प्लेन बनेगा, जैसे कार्टेशियन प्लेन लाइक स्ट्रक्चर बनेगा ये ऐसे, ठीक है। और दूसरा वाला कैसे होना चाहिए फिर, दूसरा वाला ऐसे बनेगा, है ना। सो अगर ये a है तो ये क्या बनेगा आपका -a, है ना। देखो यहाँ पे उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है ना, मैं बोलता हूँ आपको, ये पहले ये लिखो, ये a है तो ये भी a है ना, ये अगर a है तो ये भी a है, राइट। बट गाइस देखो, तो ये मतलब ये तो आपस में क्या है एक दूसरे का एंटी पैरेलल है, तो इन दोनों का एडिशन इसका और इसका कितना आएगा 0, और ये आपस में क्या है एक दूसरे का एंटी पैरेलल, क्यों इनके बीच का एंगल कितना है 180, तो इनका भी एडिशन 0, तो नेट यहाँ पे रिजल्टेंट कितना बनेगा, इनका रिजल्टेंट कितना बनेगा, रिजल्टेंट बनेगा आपका 0 यूनिट, ठीक है। आप फॉर्मूला भी डाल के कर सकते हैं यहाँ पे, कोई इशू नहीं, ठीक है। दिस इज द थिंग। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आपके बेसिक्स चेक कर रहा है, बाकी कुछ नहीं, है ना। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो इन नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग चेक करते हैं अभी क्या क्या करना है। अब क्या बोला है, सो क्वेश्चन नंबर 9, है ना। सो इन क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p प्लस क्यू इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p माइनस क्यू, ऐसा है, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड q, ओके। देखो गाइस बहुत बढ़िया एग्जांपल है, वेक्टर p और q का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड और p माइनस क्यू का जो रिजल्ट है आपस में वो उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो p और q के बीच एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो कहने का मतलब क्या है, देखो कहने का मतलब ऐसा है, देखो यहाँ पे एक वेक्टर p है, ठीक है, और वेक्टर q है, वेक्टर q है, हमको पता नहीं उनके बीच एंगल कितना होना चाहिए, हम लोग कुछ भी पता नहीं, तो हम लोग उसको जस्ट इमेजिन ही कर सकते हैं क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे वेक्टर p का, ये वेक्टर p है, उसका मैग्नीट्यूड हम लोग p मानते हैं और इसका भी मैग्नीट्यूड हम लोग
क्यू का भी हम लोग क्यू मानते हैं। अब इनका जो भी रिजल्टेंट आएगा, इनका जो भी रिजल्टेंट आएगा यहाँ पे क्या आना चाहिए, वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू का यहाँ पे रिजल्टेंट, मतलब ये उसका मैग्नीट्यूड और ये इसका रिजल्टेंट है ना। ये इसका जो वैल्यू आ रहा है ये किसके बराबर है, उनके सब्सट्रैक्शन के बराबर, किसका, पी और क्यू के बीच में। तो ये पी है तो क्यू किधर आना चाहिए, क्यू माइनस, मतलब नेगेटिव वेक्टर किधर आना चाहिए, इस डायरेक्शन में, एंटी पैरेलल है। कौन है यहाँ पे, इधर में क्यू आएगा, कौन आएगा गाइस, यहाँ पे कौन आना चाहिए, देखो माइनस क्यू, और गेटिंग का पॉइंट एंटी पैरेलल होना चाहिए, तो ये बनेगा माइनस क्यू वेक्टर, और गेटिंग, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, क्यू ही आएगा, राइट। तो क्या बोला है ये, अब देखो इन दोनों का, देखो वेक्टर पी और माइनस वेक्टर क्यू, इनका रिजल्टेंट कहाँ पे जाएगा, देखो इनका रिजल्टेंट इधर किधर जाएगा, इधर जाना चाहिए, देखो ऐसे इधर है ना, इधर जाना चाहिए। तो ये क्या बनेगा हमारा, वेक्टर पी माइनस वेक्टर क्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो, तो हम लोग रिजल्टेंट बोलेंगे है ना। ये जो वैल्यूज आ रहा है ना, इसका और इसका ये वैल्यूज आपस में सेम है, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आगे में सॉल्व करते हैं हम लोग अब इसको, बड़े एग्जाम्पल है। तो कैसे बनेगा, पी प्लस क्यू, वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू का मैग्नीट्यूड, क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा, बताओ, वही चीज़ रिपीट हो रहा है। तो क्या बनेगा यहाँ पे, वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, इक्वल्स टू, क्या बोला है हम लोगों को, वेक्टर पी माइनस वेक्टर क्यू का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे दोनों का फॉर्मूला हम लोग इक्वेट करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको इक्वेट करके हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या बनेगा बताओ, दिस विल बी नाउ पी प्लस क्यू, वेक्टर पी प्लस क्यू कितना आएगा हमारा, इन स्क्वायर रूट है दोनों भी, तो दोनों के साइड के स्क्वायर रूट हटा देते हैं, तो क्या बनेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा, टू पी क्यू कॉस ऑफ थीटा, ये क्यू है, इक्वल्स टू, ये क्या आएगा हमारा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, माइनस साइन है तो क्या है यहाँ पे आएगा, माइनस टू पी क्यू कॉस थीटा, कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इस साइड की पी स्क्वायर क्यू किससे कैंसिल हो जाएगा, अब ये माइनस टू पी क्यू इधर रखे, प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा बनेगा, तो टू और टू कितना बनेगा, ये बनेगा फोर पी क्यू कॉस थीटा इक्वल्स टू जीरो। तो ये फोर पी क्यू कॉस थीटा उस साइड में जाएगा, तो डिनोमिनेटर में जाके फिर से ये टोटल वैल्यू कितना बनेगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना बनेगा हमारा, कंप्लीटली जीरो। अब कॉस कौन से एंगल के लिए जीरो बनता है, तो कॉस 90 इक्वल्स टू जीरो बनता है। सो हम लोग का आंसर आ चुका है। तो थीटा कितना होना चाहिए बताओ, सो थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ऑलराइट। तो अब हमको क्या पूछा था बताओ, यहाँ पे हम लोग को पूछा था कि फाइंड एंगल बिटवीन दे, तो गाइस पी और क्यू, अब मैं ये सब कुछ हटा देता हूँ, तो पी और क्यू के बीच का एंगल को पूछा था, कहाँ है हमारा पी, देखो कहाँ है हमारा वेक्टर पी, सो ये हमारा वेक्टर पी था है ना, ये हमारा वेक्टर पी था और ये हमारा वेक्टर क्यू था, तो उनके बीच का एंगल कितना चाहिए था हम लोग को, 90 डिग्री। ये हमारा रिजल्टेंट, सॉरी ये हमारा रिजल्ट है, ठीक है, दिस इज द आंसर, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ओके। तो हम लोगों ने थोड़ा सा उसको ऑब्चूज कर दिया है, ठीक है। देन नेक्स्ट, अब क्या बोला है यहाँ पे, दिस इज द एप्लीकेशन है ना, ये एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है मुझे, क्या बोला है देखो, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कल विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ओके। अब सर्कल के अराउंड घूम रहा है, तो एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, चलो एक सर्कल ड्रॉ किया, थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर देता हूँ, है ना। और आगे क्या बोला है हम लोग चेक करते हैं ना, सो आगे क्या बोला है, एट टी इक्वल्स टू जीरो द पार्टिकल इज मूविंग एट ईस्ट। तो देखो हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पे डायरेक्शन कंसिडर करना पड़ेगा, ईस्ट वेस्ट कुछ बोला है, तो चलो वो भी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब लिख लेते हैं हम लोग, तो दिस इज व्हाट ईस्ट, ये वेस्ट, ऊपर में रहेगा नॉर्थ और नीचे में रहेगा साउथ, ठीक है। सो क्या बोला है, टी इक्वल्स टू जीरो, मतलब इनिशियल इंस्टेंट पे ये कहाँ पे है पता है, पार्टिकल मूविंग अलोंग ईस्ट, देखो तो पार्टिकल अलोंग ईस्ट मतलब पता है आप लोगों को, पार्टिकल यहाँ पे होना चाहिए, ऐसे क्यों, आप बोलोगे सर साउथ की तरफ जा रहा है, नहीं, हम लोगों ने टाइप में पढ़ा है कि अगर सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो हम लोग जो भी वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है या फिर हम लोग उसका डायरेक्शन जो होता है उसका, वो अलोंग क्या होता है, उसका टेंजेंट की तरफ होता है। टेंजेंट मतलब आपको सर्कल का इस पॉइंट पर आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो टेंजेंट मतलब ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करेगी, तो ये आपका इनिशियल है वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका क्या है ना, अलॉन्ग ईस्ट है, ठीक है, तो आपका ये इस साइड में भागेगा, तो हम लोग इसको V1 बोलेंगे अगर आपको वेलोसिटी चाहिए तो, है ना। सो ये इस डायरेक्शन में, मतलब ये आपका मान लो इस साइड में अगर हम लोग ले रहे हैं, ठीक है,
सो यहाँ पे हमारा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो कितना है इसका बता, तो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड है, तो ये डायरेक्शन के साथ है 10 मीटर पर सेकेंड। ओके चलो, अब क्या बोला है, अब क्या, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी, आपको चेंज इन वेलोसिटी मैग्नेट डायरेक्शन दोनों के साथ आपको चेंज निकालने के लिए बोला हुआ है, तो हम लोग निकालेंगे, बट कहाँ कहाँ निकालना है ना, तो जब ये 1/4 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, तो देखो एक सर्कल का 1/4 मतलब कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा 90 डिग्री है ना, अब हाफ बोला 2/4 मतलब हाफ मतलब कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, 3/4 मतलब यहाँ पे जाएगा, और कंप्लीट मतलब फिर से वापस उसी पॉइंट पे आएगा। तो पहले क्या बोला है, 1/4 रिवॉल्यूशन, 1/4 रिवॉल्यूशन मतलब कहाँ पे आना चाहिए, तो ये 90 डिग्री पास करेगा है ना, 360 का 1/4 कितना आएगा, 90 डिग्री, राइट, तो यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे आने के बाद इसका डायरेक्शन कहाँ पे रहेगा, टेंजेंशियल, तो देखो ये ऐसे मूव हो रहा था, ये ऐसे मूव हो रहा था टेंजेंशियल, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये कहाँ पे जाएगा, ऊपर की तरफ, तो दिस विल बी व्हाट, इसका डायरेक्शन ऐसे कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा सेकेंड हमारा वेलोसिटी पॉइंट रहेगा, मान लो v2, और यहाँ पे सेम यूनिफॉर्म है, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो अब देखो हम लोग को क्या बोला यहाँ पे, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या बनेगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी को हम डेल्टा भी बोलते हैं, तो क्या बनेगा बताओ, फाइनल माइनस इनिशियल, v2 वेलोसिटी v2 वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1, ऑलराइट। तो क्या बनेगा, देखो वेक्टर v2 कितना है हमारा 10, ठीक है, और ये कितना हमारा, ये ऊपर में है और ये नीचे में है, तो कितना आना चाहिए, v2 माइनस v1, ठीक है, तो v2 माइनस v1 हम लोग कर देते हैं यहाँ पे, बट आपको पता है हम लोग को यहाँ पे उनके सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर करना है, तो कैसे बनेगा बताओ, यहाँ पे हम लोग, मैं आपको समझ देता हूँ कि हम लोग वेक्टर का यूज़ करके उसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो अब ये दोनों का टेल है, तो टेल के साथ हम लोग उसको कनेक्ट करेंगे, देखो कैसे, देखो मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, आप लोग बोलेंगे सर v2 माइनस v1 जीरो, तो ये बन गया हमारा, क्या है हमारा v1, राइट, v1, और ये क्या है हमारा यहाँ पे v2, ठीक है, ये हमारा क्या है v2, ये v2 है और ये v1 है, हमको क्या निकालना है, v2 माइनस v1, v1 तो इधर पॉजिटिव है, तो हमको क्या चाहिए, माइनस v1 चाहिए, तो माइनस v1 मतलब किधर जाएगा, ये माइनस v1 मतलब इस साइड में जाएगा, माइनस v1 मतलब इधर में जाएगा, तो ये क्या हमारा माइनस v1 वेक्टर, ठीक है। इस वाले कोई काम नहीं, अभी डायरेक्टली हम लोग v2 प्लस मतलब प्लस माइनस v1 अब एडिशन ले सकते हैं, ठीक है, तो हम डायरेक्टली अब इसको कर सकते हैं, तो मैं इस वाले डायरेक्शन ये हटा देता हूँ, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप समझ में आया, v1 का अपोजिट कितना आएगा, माइनस v1, तो ये हटा दिया मैंने। अब देखो क्यों चाहिए मुझे यहाँ पे v2 और प्लस माइनस v1, मतलब यहाँ पे हम लोग एडिशन कर सकते हैं, अभी हमारे पास उसके लिए फॉर्मूला भी है, तो क्या बनेगा बताओ, यहाँ पे हम लोग को पता है क्या है यहाँ पे, ठीक है, तो क्या बनेगा देखो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे v2 माइनस v1, तो उसका मैग्नीट्यूड हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो कितना बनेगा वेक्टर v2 प्लस और बाद में क्या आएगा माइनस वेक्टर v1, ठीक है, अब हो गया क्लियर। अब गाइस ध्यान दो यहाँ पे है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, उनका हर बार मैग्नीट्यूड सेम होता है, बट डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या होता है, चेंज होते रहता है, इसलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन भी आता है, कहाँ पे, सर्कुलर मोशन में। तो यहाँ पे है ना, मैग्नीट्यूड और वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर क्या रहेगा, ऑलवेज 10 ही रहेगा, ठीक, सिर्फ यहाँ पे क्या चेंज होने वाला है, डायरेक्शन चेंज होने वाला है, दिस इज द थिंग, ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो यहाँ पे कितना बनेगा, देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है हमारे पास क्या है हमारा फॉर्मूला, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो यहाँ पे माइनस है तो क्या बना माइनस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। तो ये सब कुछ क्या बनेगा, यहाँ पे उनके बीच का एंगल कितना है, देखो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो कितना बनेगा कॉस 90 जीरो, तो पहले दो बार ही काम आएगा, कौन सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कॉस 90 जीरो है तो बाकी वाला पार्ट जीरो बनेगा, तो 10 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर कितना बनेगा 200 स्क्वायर, 100 स्क्वायर ये बनेगा 200 मतलब 2 इंटू 100, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा 10√2, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आएगा हमारा, डेल्टा वी कितना आएगा हमारा 10√2, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अभी चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या, हमारा एक्सेलरेशन में होगा, ठीक है, बट हमारे पास यहाँ पे टाइम वैल्यू प्रोवाइडेड नहीं है, ओके। अब नाउ अब हमको क्या बोला यहाँ पे गाइस, हम लोग यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे उनके बीच का एंगल फाइंड आउट करो, किसका, रिजल्टेंट का हमको एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो देखो अब इनका रिजल्टेंट कहाँ पे लाई करेगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है, तो कहाँ पे लाई करना चाहिए, देखो कहाँ पे लाई करना चाहिए, इन दोनों के बीच में कहीं पे लाई करना चाहिए, बट आपको ये पता होना चाहिए कि क्या होना चाहिए, पता, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, क्या है, इसका भी 10 है, इसका भी 10 है, इसका भी क्या था मैग्नीट्यूड 10 है, तो मैंने आपको सिखाया कि अगर मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो यहाँ पे जो वेक्टर पास करेगा रिजल्टेंट वो दोनों के बीच से पास करेगा, तो ये कहाँ पे जाना चाहिए, ऐसे बीच से जाना चाहिए, है ना। तो अगर ये 90 है, 90 का एक हाफ कितना आएगा 45, तो यहाँ पे 45 और यहाँ पे 45, तो कितना बनेगा ये एंगल कितना बनेगा हमारा 45, तो टैन थीटा, अगर आपको थीटा फाइंड आउट करना है या फिर उनके बीच का एंगल आपको फाइंड आउट करना है, कुछ अल्फा वगैरह है ना, टैन अल्फा वगैरह, तो क्या बनेगा टैन अल्फा इज नथिंग बट व्हाट 45 मतलब कितना होता है हमारा
सो हम लोग उसके लिए y बाई एक्स भी ले सकते हैं, या फिर मैं उसको 10/10 भी लिख सकता हूँ, 10 कंपोनेंट बाई 10 कंपोनेंट, y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कितना आएगा ये 1। सो दिस अल्फा इक्वल्स हाउ मच 45 डिग्री, क्योंकि tan कौन से एंगल के लिए 1 प्रोवाइड करता है 45 डिग्री के लिए, तो ये 45 तो ये भी बीटा भी 45 बनेगा। दिस इज द थिंग। ओके चलो नेक्स्ट। अब इसके अंदर ही हमको क्या बोला है, इसके अंदर ही अब क्या बोला है अगर इसका रिवॉल्यूशन 1/2 होता है तो मतलब 1/2 होता है, मतलब अब ये पॉइंट कहाँ से कहाँ तक गया, अब ये पॉइंट पहले यहाँ पे था, ई पे था, अब यहाँ से वो एन पे चला गया, मतलब जीरो से लेके साउथ से लेके नॉर्थ तक चला गया, मतलब कितना, ये पूरे सर्कल का हाफ सर्कल उसने तैयार किया है। तो बाकी सब हटा देता हूँ मैं, ठीक है, बाकी सब मैं हटा देता हूँ, तो आपको अभी क्लैरिटी आएगा। ठीक है, ये इनिशियल वाला रख देता हूँ हम लोग, बाकी सब हटा देता हूँ मैं। ठीक है, अब देखो क्या बोला है सेकेंड पार्ट में। अब ये उसने हाफ सर्कल मतलब हाफ रिवॉल्यूशन कवर किया है, तो क्या बनेगा, ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाने के बाद में ये सॉरी ये v1 है, वेक्टर v1 कितना है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड में। यहाँ पे जाने के बाद ये टेंजेंशियली किधर जाएगा, इधर जाएगा, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सा आएगा v2 वेक्टर, और उसका मैग्नीट्यूड भी कितना आएगा हमारा 10 मीटर पर सेकेंड। ओके चलो नेक्स्ट, ये है हमारा। ओके अब देखो गाइस, इस वाले वेक्टर को, इनिशियल वेक्टर को और इस वाले वेक्टर को हमको एग्जीक्यूट करना है, तो हमको चेंज इन वेक्टर मतलब चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। तो क्या बनेगा, फिर से हम लोग का सेकेंड पार्ट के लिए चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेल्टा वी मतलब क्या, चेंज इन वेलोसिटी, क्या बनेगा फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। ऑलराइट, अब देखो अब हम वेक्टर बाय वेक्टर को सॉल्व करेंगे। देखो मैं दोनों वेक्टर उठाते हैं, देखो ये वेक्टर है और एक वेक्टर है, इन दोनों का टेल टू टेल कनेक्ट कीजिए। ठीक है, तो ये v2 इधर जा रहा है और v1 इधर जा रहा है, तो हम लोग उसको दोनों का मैग्नीट्यूड 10 है, तो हम चलो सॉल्व करते हैं उसको। देखो आप बोलोगे सर एंटी पैरेलल है और दोनों जीरो हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो ये v2 इधर है, इस साइड में v2 है आपका, है ना, और इस साइड में आपका v1 है। ठीक है, बट ध्यान देना पड़ेगा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो v1 इधर जा रहा है जिसका वैल्यू भी 10 है, और v2 इस साइड में जा रहा है, ठीक है, इसका वैल्यू भी 10 है। तो आप बोलेंगे सर दोनों तो एंटी पैरेलल और जीरो नहीं है, हमको क्या चाहिए v2 माइनस, यहाँ पे v1 है, v2 माइनस क्या हमारे यहाँ पे v1, तो जीरो नहीं होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट बाकी है, v2 माइनस v1 को हम लोग कैसे लिखते बताओ, डेल्टा v नथिंग बट व्हाट वेक्टर v2 प्लस माइनस v1। ऑलराइट, अब माइनस v1 मतलब v1 का डायरेक्शन चेंज करना है, तो अब नया वाला पार्ट क्या बनेगा, v2 तो एज इट इज है, v2 किधर था, इधर ही था, इसका वैल्यू क्या था, वेक्टर v2 का मैग्नीट्यूड कितना था हमारा 10 ही था। अब v1 भी डायरेक्शन चेंज करके इधर आ चुका है, तो कहाँ पे जाएगा, इसके ऊपर ही लाई करेगा, मतलब मैं नीचे में ड्रॉ करता हूँ, एक दूसरे को क्या बन जाएगा, ये पैरेलल बनेंगे। ठीक है, ये ऐसे वेक्टर v1 भी इधर जाएगा, अभी उसका वैल्यू कितना बताऊँ, अभी वेक्टर v1 का भी मैग्नीट्यूड हमारा कितना है 10 है, तो कितना बनेगा देखो यहाँ पे हम लोग करेंगे तो दोनों भी एक डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे क्या बनेगा 10 + 10 कितना बनेगा हम लोग का बताओ, है ना, हम लोग का आंसर पे आ चुका है। सो दोनों का डायरेक्शन अभी हमारा सेम है, तो ये 10 + 10 कितना बनेगा हमारा 20 मीटर पर सेकेंड, डेल्टा वी इज व्हाट 20 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। ओके, अब ये हो गया। अब यार दोनों अगर एक सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट भी किधर जाएगा, रिजल्टेंट दोनों का एडिशन करके 10 + 10 कितना बनेगा रिजल्टेंट, आप लोग खुद दिमाग लगाओ कितना बनेगा 10 + 10, अब ये लेंथ डबल हो जाएगा ना, ये रिजल्टेंट आपका कौन, रिजल्टेंट वेक्टर कौन है हमारा, वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2, इसका वैल्यू कितना आ चुका है 20, किधर जाएगा, जिस साइड में दोनों उस साइड में ये भी भागेगा। ठीक है, कैसे चलती हैं, तो यहाँ पे उसका कौन से डायरेक्शन में जाएगा, ये जाएगा हमारा किधर जाएगा, वेस्ट की तरफ, ये कहाँ पे जाएगा वेस्ट की तरफ। ऊपर वाला कहाँ पे जा रहा था, देखो ऊपर वाला कहाँ पे जा रहा था, ठीक है, ये था हमारा कौन सा था, ये था हमारा नॉर्थ, ये था हमारा वेस्ट, तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में जा रहा था, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट। नेक्स्ट, अब थर्ड पॉइंट क्या है उसका चेक करते हैं हम लोग। अब 3/4 रिवॉल्यूशन आप लोग अब निकाल सकते हैं, मतलब यहाँ पे आएगा तो उसका डायरेक्शन कौन सा रहेगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो अभी कैसे उसको करना है। सॉरी यहाँ पे है, सॉरी इधर नहीं जाएगा, ये नीचे में आएगा, ऐसे ऐसे आएगा, तो ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, तो हम लोग आप 3/4 वाले रिवॉल्यूशन को आप लोग कर सकते हो, और 1 रिवॉल्यूशन के लिए यहाँ पे मतलब वहाँ पे वो जीरो कर देगा। ठीक है, फिर से वही चीज़ नहीं करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है, सो इस वाले एग्जाम्पल में क्या बोला है, अ पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग अ सर्कल, वही एग्जाम्पल को रिपीट करना है, ऑफ रेडियस आर विद यूनिफॉर्म स्पीड v। ठीक है, एट t = 0 मतलब इनिशियल इंस्टेंट 0 है, द पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग द ईस्ट। ठीक है, ईस्ट पे ही है, फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन बोला है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन
कहाँ पे 1/4 रिवॉल्यूशन एंड 1/2 रिवॉल्यूशन तक को फाइंड आउट करना है। तो वही चीज़ हमको यहाँ पे ड्रॉ करके उसको फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ने वाली है। तो हम लोग यहाँ पे सर्कल बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे उनका डायरेक्शन चाहिए तो वो भी ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, ओके सुनाओ। सो अब आगे करते हैं हम लोग, ये सभी हमारे डायरेक्शंस, साउथ ईस्ट नॉर्थ एंड वेस्ट। ऑलराइट, सो हमको क्या बोला है, सो क्या बोला है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ईस्ट से ही स्टार्ट कर रहा है क्या, हाँ। तो पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम व्हाट, मूविंग अलॉन्ग ईस्ट, ठीक है। ईस्ट में मूव कर रहा है मतलब कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे साउथ पॉइंट पे होना चाहिए। हमको पता है कि फिर से वही पॉइंट रिपीट हो रहा है, क्यों होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो भी डायरेक्शन रहेगा हमारा वेलोसिटी एक्सेलरेशन, ये परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा हमारा, परपेंडिकुलर मतलब टेंजेंशियल रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट, अभी यहाँ पे अगर ये ईस्ट में मूव कर रहा है तो हमारा ये क्या रहेगा, वेलोसिटी कंपोनेंट रहेगा हमारा इनिशियली, ठीक है। हमारा इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट रहेगा, राइट। सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, v1 बोलेंगे, राइट। सो हम लोग इसको v1 बोल सकते हैं। और यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए उसका हम लोग v मानते हैं। इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर v1 है, एंड उसका मैग्नीट्यूड भी हम लोग कितना मानेंगे गाइस, दिस इज इक्वल टू v मान लेंगे हम लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या हो रहा है यहाँ पे, अब क्या बोला है यहाँ पे, उसको हम लोग को लेना है 1/4 रिवोल्यूशन के लिए, मतलब ये कहाँ पे जाना चाहिए, यहाँ पे 1/4 मतलब यहाँ पे मतलब 90 डिग्री कवर करेगा। अब यहाँ पे जाने के बाद इसका डायरेक्शन कहाँ पे जाएगा, ऊपर के साइड में रहेगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे कहाँ पे मूव करेगा, यहाँ पे रहेगा। तो ये हमारा v2 पॉइंट है, ठीक है। v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे ऑलवेज v रहेगा, क्योंकि क्या है हमारी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट। तो नेक्स्ट अब क्या बोला यहाँ पे हमको एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। देखो अब यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है हमारे पास, एवरेज एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। सो एवरेज एक्सेलरेशन नथिंग बट व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या बनेगा, डेल्टा v बाय डेल्टा टी, ठीक है। अब चेंज इन वेलोसिटी, अब गाइस देखो अगर ये यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ पे जा रहा है तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आ रहा है, तो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे निकाला था। हम लोग फिर से उतना पार्ट थोड़ा सा स्किप करेंगे क्योंकि हमारे एफर्ट्स फिर से वहाँ से चले जाएंगे। पहले पार्ट में हम लोगों ने निकाला हुआ है। देखो अगर मुझे यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सिर्फ v माना हुआ है, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कितना था हमारा, देखो लास्ट टाइम में उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना था हमारा, उसका 10 था। तो कितना आना चाहिए, कितना आया था उसका आंसर हमारा यहाँ पे √210 आया था, √210। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड हमारा v है 10 के बदले, तो कितना आना चाहिए, √2v आना चाहिए। चेंज इन वेलोसिटी किसके लिए निकाला था हम लोगों ने, देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट मतलब 1/4 पॉइंट के लिए, ठीक है। तो पहले पार्ट के लिए हम लोग बोलेंगे यहाँ पे डेल्टा v, पहले पार्ट के लिए डेल्टा v कितना मानेंगे हम लोग गाइस, यहाँ पे ये आएगा √2v, ऑलराइट। देन नेक्स्ट पॉइंट में क्या है हमारा, अब हम लोग क्या चाहिए, चेंज इन टाइम चाहिए। तो टाइम के लिए हमारे पास कोई कंस्टेंट, हमारा टाइम कंस्टेंट के लिए हमारे पास कुछ पता नहीं है, तो हम लोग को निकालना पड़ेगा टाइम। तो टाइम कैसे निकालेंगे, हमारे पास सब कुछ है, हम लोगों ने 10 तक सब कुछ पढ़ा। टाइम के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा फिर टाइम निकालने के लिए, टाइम हमारे हमको पता है कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम के लिए क्या बनेगा फिर हमारे पास, बताओ। तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, टाइम इक्वल्स टू क्या होना चाहिए हमारा, डिस्टेंस बाय स्पीड, ये बनेगा डिस्टेंस बाय स्पीड, ऑलराइट। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वो भी कितना होना चाहिए हमारा v है यहाँ पे, ठीक है। डिस्टेंस कितना है, देखो अब पूरी सर्कल की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसका कैपिटल टी मतलब टाइम पीरियड रहेगा, राइट। अब हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड रहेगा तो हर एक 1/4 पार्ट के लिए उसको t/4 बनेगा, है ना। 2/3 पार्ट के लिए 2/3 t रहेगा, हाफ पार्ट के लिए t/2 रहेगा, लाइक वाइज, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना रहेगा, एक सर्कल को पूरा घूमेगा मतलब क्या रहेगा उसका सर्कमफरेंस, ठीक है। क्या रहेगा उसका सर्कमफरेंस, डिवाइड बाय क्या रहेगा, स्पीड मतलब उसका मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास v है। तो सर्कमफरेंस क्या होगा, देखो टोटल टाइम पीरियड की t को क्या आएगा हमारा 2πr/v, 2πr/v, ठीक है। ये किसके लिए बनेगा, टोटल सर्कल के लिए बनेगा, ऑलराइट। तो मैं यहाँ पे r के जगह बदला कैपिटल R लेता हूँ। तो अब मुझे मैं तो
एस पॉइंट से लेके ई पॉइंट तक जा रहा हो, तो मतलब कितना पूरे सिलेंडर का 1/4 कवर कर रहा हो, तो कितना बनेगा 2πr/4 बनेगा, राइट। तो टाइम पीरियड भी मेरा कितना होना चाहिए, T4 बनना चाहिए। तो दोनों साइड में अगर मैं T/1/4 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बनेगा T/4, और ये कितना बनेगा 2πrv, और इसको मैं 4 से करूंगा तो ये कितना आएगा मेरा πr/2v। तो यहाँ से इस पॉइंट तक जाने के लिए उसका टाइम पीरियड कितना रहेगा, पूरे टाइम पीरियड का 1/4 पार्ट, तो कितना आना चाहिए πr/2v। ये किसका किसका वैल्यू हमारा T/4 का वैल्यू, मतलब टाइम का। तो हम लोग यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, मतलब एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं अभी यहाँ पे पहले पार्ट के लिए। तो क्या बनेगा बताओ, पहले पार्ट का एक्सेलरेशन, तो पहले पार्ट का एक्सेलरेशन क्या बनेगा, एक्सेलरेशन ये भी हमारा वेक्टर है तो क्या होना चाहिए, तो चेंज इन वेलोसिटी हमारा कितना है √2v। अब हो गया सब कुछ सॉल्व, और ये कितना आना चाहिए हमारा πr, है ना, अपॉन 2v, मतलब कितना जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर में, ठीक है। तो अभी कितना हो चुका है हम लोगों का, ये सॉल्व हो गया पूरा। दिस इज नथिंग बट व्हाट 2√2v²/πr, ठीक है। और ये कहाँ पे जाएगा, दिस इज थिंग। अब इसका डायरेक्शन कहाँ पे यार, डायरेक्शन तो आपको निकालना पड़ेगा। तो डायरेक्शन कहाँ पे जाएगा बताओ आप लोग, ठीक है। तो देखो अब वेक्टर बाय वेक्टर हम लोग इसको निकालेंगे तो हम लोग को डायरेक्शन भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन कैसे निकालना है, सो वेक्टर डायग्राम से हम लोग उसको बोल सकते हैं, जिससे हम लोगों ने प्रीवियस प्रॉब्लम में सॉल्व किया है। इसका डायरेक्शन भी किधर रहेगा, एक्सेलरेशन का ये भी रहेगा हमारा नॉर्थ वेस्ट की तरफ, ठीक है। सो डायरेक्शन इज लॉन्ग वॉट नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इसे हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। टैन थीटा अप्लाई करके आप लोग उसको, या फिर अल्फा बीटा का यूज़ करके आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पार्ट में इसके क्या बोला है कि नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या बोला है इसको, सेम ये 1/2 रिवोल्यूशन, मतलब हाफ रिवोल्यूशन, मतलब ये कितना करेगा यहाँ पे कवर, ये करेगा 180 डिग्री, ठीक है। सो इट इज़ 180 डिग्री, मतलब देखो ये इधर जा रहा है, तो आपका जो वेक्टर v2 है ये किधर जाना चाहिए, इस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा आपका 180, तो ये क्या बनेगा आपका वेक्टर v2, और उसका मैग्नीट्यूड भी आपका v है, ठीक है। हम लोगों ने 180 डिग्री के लिए हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी v2 - v1 कंपोनेंट क्या आया था हमारा सेकेंड पार्ट के लिए। तो सेकेंड पार्ट के लिए आई गेस यहाँ पे हमारा वैल्यू आया था, मुझे लगता है v आया था शायद से, कितना आया था हमारा पे चेंज इन वेलोसिटी, इसके लिए हमारा 2v आया था, सॉरी 2v आया था, चेक करना पड़ेगा। तो सेकेंड पार्ट के लिए हमारा आंसर कितना आया था 2v, है ना। सो 2v आया था हमारा आंसर सेकेंड पार्ट के लिए, ठीक है, बराबर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 20 है, 20 मतलब क्या बनेगा हमारा 2 × 10, तो 10 तो उसका गिवन मैग्नीट्यूड था, तो हम लोग यहाँ पे v बोला है तो कितना बनेगा यहाँ पे 2v बनेगा, ओके, दिस इज द थिंग। चलो अब यहाँ पे हम लोग उसको सॉल्व करना है, डेल्टा भी हमको पता चल गया सेकंड पार्ट के लिए, तो हम लोग यहाँ पे उसको पॉइंट बाय पॉइंट कर सकते हैं। मतलब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है v2 और v1 इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो 180 डिग्री का डिफरेंस है इस साइड में, तो मतलब सेम चीज़ बनेगा। देखो लास्ट एग्जाम्पल में हम लोगों ने इसको सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो इधर इस साइड में v2 है, इस साइड में v2 है जो कि सेम वैल्यू v है उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, और इस साइड में v1 है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो मतलब अगर इधर ड्रॉ करूँगा तो फिर से वही चीज़, तो ये v1 है, वेक्टर v1, और उसका मैग्नीट्यूड कितना हमारा यहाँ पे v है, ठीक है। सो अब देखो इनके बीच का एंगल कितना है यहाँ पे थीटा को 180 बन रहा है। अब हमको क्या चाहिए यहाँ पे v2 - v1 अपॉन t2 - t1, v2 - v1, है ना। तो ये उनका चेंज इन वेलोसिटी में चाहिए हमको डेल्टा v। तो अब यहाँ पे ये v है माइनस v है, तो हमको उसको ऐसे लिख सकते हैं v2 माइनस, मतलब ये प्लस, और ये कितना बनेगा -v1 वेक्टर, ठीक है। तो ये v जो है इसको बदल के आपको इस साइड में डायरेक्शन लेके जाना पड़ेगा, तब जाके माइनस का प्लस का माइनस बनेगा। तो मतलब मैं इसको हटा देता हूँ इस साइड में अभी, और एक इधर लेके जाना पड़ेगा हम लोगों को, फिर उस साइड में लेके जाना पड़ेगा। तो मतलब ये एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, फिर से ओवरलैप करेंगे। तो फिर से ओवरलैप करेंगे तो क्या बनेगा, ये ओवरलैप करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा आएगा, हम लोग थोड़ा मार्कर चेंज करते हैं, ये बनेगा v1 इक्वल टू क्या बनेगा हमारा v, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड है। तो ये क्या बनना चाहिए हमारा v2 का मैग्नीट्यूड भी हमारा कितना है v है, और ये भी कितना है v, तो v प्लस v कितना था हमारा यहाँ पे 2v है, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट क्या हमारा डेल्टा v मतलब कितना होना चाहिए हमारा यहाँ पे 2v, डेल्टा v कितना हमारा यहाँ पे 2v है। अब नेक्स्ट क्या है हम लोग यहाँ पे डेल्टा t कितना होना चाहिए, देखो यहाँ पे डेल्टा t हमको निकालना पड़ेगा। डेल्टा t मतलब कितना बनेगा हमारा t2 - t0, या फिर t1 बोलेंगे उसको, जो बोलना है बोलो। तो यहाँ पे कितना बनेगा हम लोगों का,
अब पूरे हाफ सर्कल के लिए घूमेगा तो मतलब कितना सरकमफेरेंस कवर करेगा, 2 पाई आर का हाफ कितना बनेगा, पाई आर, 2 पाई आर का हाफ पाई आर बाई हमारा क्या है यहाँ पे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कितना है हमारा यहाँ पे बताओ, तो 2 पाई आर बाई वी है हमारा ना, टी बाई 2 है हमारा एक्चुअली, टाइम कितना होना चाहिए टोटल टाइम हाफ है ना, 2 पाई आर बाई वी, तो ये हमारा यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या क्या करेंगे यहाँ पे उसको एक्सेलरेशन निकालेंगे फॉर हाफ सर्कल के लिए, तो कितना बनेगा एक्सेलरेशन मतलब डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, तो डेल्टा वी कितना आ चुका है हमारे यहाँ पे 2 वी आ चुका है, और ये कितना है हमारा हाफ के लिए निकाला था हम लोग, कितना आ गया पाई आर बाई वी, तो कितना आएगा पाई आर और ये वी जाएगा ऊपर तो बनेगा 2v² बाई पाई आर, ठीक है। और इसका डायरेक्शन कहाँ पे जाएगा, ऑब्वियसली दोनों का डायरेक्शन कितना है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, कौन सा डायरेक्शन है इस साइड में, वेस्ट डायरेक्शन, तो किधर में जाएगा, वेस्ट, अलॉन्ग वेस्ट, ठीक है। सो एक्सेलरेशन इज अलॉन्ग वेस्ट। तो ये देखो हम लोगों ने यहाँ पे बेसिक एग्जांपल जो कि हमारे किसके ऊपर है, वेक्टर्स के ऊपर हम लोगों ने सॉल्व किए, ठीक है। आई होप आपको ये समझ पे आ गए होंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।